Yes. So we are studying about force. Definition पढ़ी होगा आपने. Force is a push or a pull. Effects of force. Force से क्या क्या effects हो सकते हैं? बताइए. Change in shape. Force can cause change in shape or Locomotion. it can bring a body at rest to motion. It can bring a body from motion to rest. It can change the speed of the body. It can change direction of motion of the body. It can change shape of the body. ठीक है. तो फोर्स से ये सारा कुछ हो सकता है. और फोर्स का फॉर्मूला क्या था? न्यूटन सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है. और ये चेंज इन मोमेंटम जो होता है, यानी मोमेंटम को लिख सकते हैं m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी. और ये फिर ऐसे लिख सकते हो m dv by dt. एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. ठीक है. एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स. कौन कौन से? Acceleration depends on two factors. Which two factors? Force and mass. यहाँ से acceleration depends on force and mass. Equal to F by m. The more is the force, more will be the acceleration, and more is the mass, less will be the acceleration. Two bodies interacting with each other. Say bodies are A and B. Force applied on A. Force applied by A on B is equal and opposite to the force applied by B on A. So, two bodies exerting force on each other, then force on A due to B is equal and opposite to force on B due to A. ठीक है. और इससे एक लॉ हमें प्रूव होता है. कौन सा? Which law can be proved from Newton's third law? Law of conservation of Law of conservation of mass. हाँ. Momentum. Law of conservation of momentum. दोनों का सम 0 होगा. Obviously ये vectors हैं, ध्यान रखना. ठीक है. Equal and opposite only when they are equal quantities. तो force on A will produce a change in momentum in A, and force on B will produce a change in momentum in B. ठीक है ना. तो d by dt कॉमन ले लें. PA plus PB that's equal to 0. और टोटल मोमेंटम अगर P मान लें तो P is constant. That means total momentum of a system always remains constant. किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव अगर 0 है, then that quantity is constant. कांस्टेंट का डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन हमेशा 0. ठीक है. Newton's third law. Force acting on A due to B is equal to force on B due to A and opposite in direction. What is impulse? Force acting for a small time interval. Force acting for a small time interval. That's impulse. और force क्या होता है? Rate of change of momentum. It means impulse is change in momentum. So change in momentum. दो फॉर्मूले impulse के, एक force into time और दूसरा change in momentum. दोनों यूज होते हैं, ध्यान रखना. Impulse को कैसे डिनोट करते हैं? Impulse को कैसे डिनोट? Impulse को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. So what is tension? Tension. force Where
we have a string and we suspend it. धागा लटका दिया. Now we suspend the body. ठीक है, ये एकदम सीधा हो गया. सीधा हो गया इसका मतलब इस पर फोर्स है. ठीक है, इस पर फोर्स है. ध्यान से देखो कौन कौन सी फोर्स है. Weight of the body. Weight of the body. The body is going to pull this string in a way. So the body applies force on the string in the downward direction. And the string is going to apply the same force on the support in the downward direction. In the downward direction. Body string पर force लगाएगी, string support पर. And the support is going to apply an equal reaction force on the string in opposite direction. We call that as tension. और अगर आपको फील करना हो कि हाँ ये फोर्स एक्ट होती है, तो सपोर्ट छोड़े, धागे को खुद ही पकड़ लो. खुद ही पकड़ ले, रस्सी पकड़ लो, नीचे लटकाओ वेट खूब सारा, तो आपको बहुत जोर से उसको होल्ड करना होगा. It means that body is applying force on the string and the string is applying force on the hands, and now you are applying equal reaction force on it to hold it in opposite direction. The reaction force acting on the string is called tension. ठीक है, that's called tension. In this case, this tension will be equal to mg. Body is lying on a surface and we tie a string to it. Now we apply force on the string. We are trying to pull the string will pull the body will apply equal reaction force on the string, and that will be tension. तो यहाँ T किसके equal होगा? Applied force. And a very important case, we have two bodies with mass m1 and m2, m1 greater than m2. क्या होगा? ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा. किसकी स्पीड ज्यादा होगी? m1 की या m2 की? m1 की. रीजन तो ज़्यादा पास हो, ज़्यादा नीचे मतलब ज़्यादा ग्रेविटी हाइट कम M1 कौन सा नीचे आएगा? ये m1, ये m2. कौन सा नीचे आएगा? अगर मास हाँ, ये ज्यादा है भाई, m1 ज्यादा है, तो m1 नीचे आएगा और m2 ऊपर जाएगा. बड़ा सिंपल ना. आप एक पुली ले लें, पुली पर एक रस्सी लटका रहे दोनों तरफ. ठीक है, अब दोनों को ऐसे पकड़ लें, इधर से खींचे इधर से ऊपर जाएगी और इधर से खींचे तो इधर से ऊपर जाएगी. तो जिधर ज्यादा फोर्स लगाओगे उधर से नीचे आएगी. तो इधर ज्यादा फोर्स लगेगी ना, तो ये नीचे आएगा. इसमें भी इधर ही ज्यादा फोर्स लगेगी, इसका वेट ज्यादा है, तो ये नीचे. लाइटर विल गो अप एंड द हेवियर विल मूव डाउन. ठीक है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? दोनों की इक्वल. आप सोचो ना, वो रोप तो बराबर ही जाएगी. ऐसा तो हो नहीं सकता ये पहले पहुंच गई वो अभी आ रही है, ऐसा तो होता नहीं है. तो दोनों एक साथ मूव करेंगे ना साइमल्टेनियसली, तो दोनों की स्पीड सेम होगी, यानी दोनों की एक्सेलरेशन भी सेम होगी. और स्ट्रिंग में टेंशन होगी दोनों तरफ इक्वल टेंशन. कितनी होगी? same direction, We need to find tension in the strings, both the strings, and acceleration of the masses. tension. अब दोनों में टेंशन सेम क्यों होगी? सुनो काम की बात बता रहे हैं. दोनों में टेंशन सेम क्यों होगी और किधर होगी? ठीक है, तो बड़ा सिंपल आइडिया देते हैं. एक रस्सी ले लो, रस्सी को इस पर ऐसे लटका दो. ठीक है, दो एंड्स हैं,
दोनों पर वेट्स लटका दो। अब इसको होल्ड करो। यू आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग, इधर वाली पर भी और इधर वाली पर। सो बोथ स्ट्रिंग्स दे आर एक्सपीरियंसिंग सेम रिएक्शन फोर्स, तो दोनों में टेंशन सेम होगी। और किधर लगा रहे हो फोर्स? ऊपर, तो टेंशन सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन में होगा, जो वैल्यू होगा वो भी सेम होगा। वो सेम, भाई आप तो ऐसे खींच रहे हो ना रस्सी को। मतलब वो इररिस्पेक्टिव की कौन सा हाँ हाँ हाँ, आप तो सेम फोर्स लगाए, ठीक है, दोनों को ऐसे होल्ड करके रखा हो, तो यू आर अप्लाइंग सेम फोर्स। उनका वेट अलग अलग हो सकता है इमटेरियल, बट वी आर अप्लाइंग सेम फोर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द स्ट्रिंग, तो टेंशन दोनों तरफ सेम होगी और विल बी टुवर्ड्स द पुली, टुवर्ड्स द पुली, ध्यान रखना, ठीक है, राइट। एक्सप्रेशन कितनी होगी और टेंशन कितनी होगी? किसी को फॉर्मूला याद हो? वैसे तो फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट कई बार केसेस ज़्यादा हो जाते हैं तो फॉर्मूले ध्यान नहीं रहते। फिलहाल इसका फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। एनीबॉडी कैन, कैसा फॉर्मूला क्या होगा टेंशन का या एक्सेलरेशन का? चलो डेराइव करते हैं। ये डेराइव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फॉर्मूला में एग्जाम में भी भूल सकता है और इसके कई अलग अलग केसेस हैं, तो डेरिवेशन के स्टेप्स ध्यान रखिए। पे अटेंशन, वेट एक्ट होगा M1G और यहाँ M2G, ठीक है। इधर आ जाओ, ये नीचे आ रहा है, दो फोर्सेस एक्ट हो गए। एक बार देख लो बाद में नोट प्लीज, क्योंकि बेसिक्स है हर जगह यूज होते हैं। दो फोर्सेस एक्ट हो रही, एक M1G और एक T। इस तरफ देखें तो दो फोर्सेस एक्ट हो रही, एक ये वेट और एक T। कौन सा ज्यादा है? दोनों कौन सा ज्यादा है? कैसे पता लगा? नीचे की तरफ जा रहा है। हाँ, नीचे जा रहा है। टेंशन ऊपर, अगर नीचे जा रहा है इसका मतलब M1G ज्यादा है, अगर इक्वल होता तो माइनस, अगर इक्वल होता तो वहीं रुका है। वेरी गुड, ठीक है, यही चीज़ें ध्यान रखनी है क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो M1G ज्यादा है। तो नेट फोर्स कितनी हो गई? M1G minus T, and net force always equal to mass into acceleration, ठीक है, net force is always mass into acceleration। ये पहला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। सिर्फ इधर देख रहे हैं, ये नीचे आ रहा है, इसका मतलब M1G is more than T, ठीक है। अगर ऊपर जा रहा होता तो T ज्यादा होता एज कम्पेयर टू वेट, बट नीचे आ रहा है तो वेट इज मोर देन द टेंशन। नेट फोर्स कितनी होगी? M1G minus T, ठीक है। तो फिर T कितना होगा? M1G minus M1, ये आ गया समझ में, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी तरफ, क्या इक्वेशन बनाए? कौन सी फोर्स ज्यादा है? ये T। कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? ऊपर जा रहा है, कौन सी फोर्स ज्यादा होगी? T। और ये कम है तो नेट फोर्स कितनी होगी? T minus and will be equal to mass into acceleration, ठीक है। तो MT will be equal to M2A plus M2G, दोनों को इक्वेट कर दो। M1G minus M1A equal to M2A plus M2G। A की टर्म्स एक तरफ ले जाओ, A की टर्म्स एक तरफ ले जाओ, G की टर्म्स एक तरफ ले जाओ, तो क्या आ जाएगा? M1G minus M2G equal to M1 plus M2 into A. So A will be equal to M1 minus M2 by M1 plus M2 into G. That's acceleration, ठीक है। और दोनों में से किसी में भी A की वैल्यू प्लेस कर दें, जैसे यहाँ पर A की ये वैल्यू प्लेस कर दें तो ये गेट वैल्यू T 2M1 M2 by M1 plus M2 into G प्लेस करके निकाल सकते हैं, डायरेक्टली याद कर लो, ज़्यादा इजी, ठीक है। स्टेप्स बहुत क्लियर होने चाहिए क्योंकि इन पर भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। The steps must be very very clear। हाँ जी, ये कहाँ से आया? A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू यहाँ प्लेस करो, T equal to M2 into
m1 minus m2 by m1 plus m2 into g plus m2g. इसको सॉल्व करो, ये आएगा 2 m1 m2 by m1 plus m2. ठीक है? Now here we have a body. ठीक है? एक और केस है नेक्स्ट केस ऑब्वियसली ये नीचे आएगी, वो आगे जाएगी। और अगर क्वेश्चन नहीं है, अगर ये बहुत छोटी सी हो, अब क्या होगा? अभी नीचे तब भी नीचे आएगी। तब भी नीचे की आएगी, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ऊपर चली जाएगी, उसका रीजन अटक जाएगी। ठीक है, ये तो इधर ही आएगी और ये इधर जाएगी नीचे। हम किसी भी केस में फ्रिक्शन इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर फ्रिक्शन भी हो तो क्या होगा वो बाद में देखेंगे। पहले बिना फ्रिक्शन वाले राइट से दिस इज m1 नाउ फोर्सेस पे अटेंशन डेट एक्ट होगा m1g टेंशन t। ठीक है, टेंशन ऑलवेज टुवर्ड्स द पुली और इधर टेंशन t। ठीक है, आ गया समझ में? ओके, अब यहाँ पर एक्सेलरेशन है, इसमें एक्सेलरेशन a। तो एक्सेलरेशन कितनी है और टेंशन कितनी है, दोनों के लिए फॉर्मूला डेराइव करें, दोनों के लिए। पहले यहाँ पर m1g minus t इक्वल टू m1 है, आया समझ में? चेक करो सबको। ठीक है, तो t विल बी इक्वल टू m1g minus m1। ये थी क्या? हम डेरिवेशन कर रहे हैं, एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा या क्वेश्चन आ सकता है टेंशन का फॉर्मूला, व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर टेंशन, या न्यूमेरिकल आ सकता है। हाँ, तो ये वो एक अलग केस था, ये अलग केस है। द केस चेंजेस, उसमें पुली पर दोनों तरफ स्ट्रिंग थी, इसमें दिस बॉडी इज लाइंग ऑन अ सरफेस। ठीक है, तो ये जब नीचे आएगी वो आगे हो जाएगी, तो टेंशन और एक्सेलरेशन कितनी कितनी होगी फॉर्मूला चाहिए। राइट, दूसरी तरफ देखना T विल बी इक्वल टू m2a, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। अच्छा m1g तो नीचे, m2g नीचे की तरफ m2g तो नीचे m2 है, वो तो मैं चाहिए नहीं, हमें तो देखना है इधर कितनी फोर्स लग रही है, इधर एक ही फोर्स लग रही है, कौन सी? टेंशन, एंड दैट प्रोवाइड्स मोशन टू द बॉडी and that provides acceleration to the body. So T equal to m2, this is very important. दोनों को इक्वेट करो, m2a equal to m1g minus m1a और a equal to m1g by m1 plus m2। ठीक है, आ गया फॉर्मूला एक्सेलरेशन का। यस, और क्या चाहिए? टेंशन, तो a की वैल्यू इसमें डाल दो। टेंशन क्या देंगे? m1 m2 by m1 plus m2 into g, that's tension. Question is, what minimum force is required to bring a body into motion? किसी भी बॉडी को मूव करने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए? कितनी? स्टैटिक फोर्स बोले तो स्टैटिक मींस रुका हुआ, रुकी हुई फोर्स, उसको चलाने के लिए उसको मतलब उसके वेट से ज्यादा। वेट तो इधर एक्ट हो रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वेट उसको तो अगर इधर कम एक्ट कर हो ले रहा तो है, वेट इधर एक्ट हो रहा है, मूव तो इधर करना है, तो वेट का इससे कोई लेना नहीं। एक बात, दूसरी बात, मान लो फ्रिक्शन नहीं है, मान लो फ्रिक्शन है नहीं, व्हाट मिनिमम फोर्स इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन? हाँ, फ्रिक्शन है नहीं, तो कम से कम कितनी फोर्स चाहिए? बहुत कम। बहुत कम, कितनी हैं? बोले तो
Any non-zero force can bring a body in motion. Any non-zero force can bring a body in motion. कितनी भी लगा दो बॉडी मूव करती है, ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो, और अगर फ्रिक्शन है तो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसको ओवरकम कर ले तो बॉडी मूव, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन, लिख लो इस पॉइंट को, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन एनी नॉन जीरो फोर्स, in the absence of friction any non-zero force can bring a body in motion. In the absence of friction any non-zero force can bring a body in motion. Okay. We have a body placed on an inclined plane. हाँ, अगला कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन कितनी होगी ये याद होना चाहिए, ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए इंस्टेंट। तो वेट mg रिजॉल्व करें, ये एंगल कितना होगा थीटा, तो ये क्या होगा mg cos और ये क्या होगा mg sin theta. So the force responsible for motion mg sin theta. Acceleration is always force upon mass. तो किसके इक्वल होगा g sin theta. ठीक है, नोट करो और ये याद रखना है, बहुत जगह यूज होगा। Acceleration possessed by a body placed on an inclined plane. Acceleration possessed by a body placed on an inclined plane. What is the normal reaction? सर जब जैसे बॉडी की सरफेस पे पड़ी है तो उस पर जो सरफेस फोर्स लगा रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी अगर सरफेस पर है तो सरफेस जो उस पर फोर्स लगा रहा है उसे नॉर्मल रिएक्शन कहेंगे। नॉर्मल रिएक्शन इज अ रिएक्शन फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। इट्स अ रिएक्शन फोर्स एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस। जैसे बॉडी यहाँ पर है तो वेट इधर एक्ट होगा और नॉर्मल रिएक्शन इधर होगी। इसे कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कैपिटल आर से कर देते हैं, कहीं कैपिटल एन से कर देते हैं। ओके, बट इफ अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर एन इंक्लाइंड प्लेन तो ये mg रिजॉल्व करें, ये कंपोनेंट क्या होगा mg cos थीटा और ये क्या होगा mg sin थीटा। यहाँ नॉर्मल रिएक्शन ये होगी and that's a big difference. अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पर प्लेस्ड है तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू mg और अगर इंक्लाइंड प्लेन पर है तो नॉर्मल रिएक्शन होगी mg cos थीटा। ठीक है, it's a reaction force, it's a reaction force acting normal to the surface. It's a reaction force acting normal to the surface. क्या चाहिए एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फिर से ठीक है, कंसेप्ट वही रहेंगे। वेट ये कितना होगा m cos sin theta। if this is theta then this component will be m to g sin theta। ठीक है, अब पहले जब ये नीचे आ रहा है तो m1g minus t will be equal to m1a। ठीक है, और उस तरफ t minus m2g sin
और इन्हीं में वैल्यूज प्लेस करके सॉल्व करें। ए या टी निकला है, ठीक है। हाँ मतलब नहीं नहीं इधर जा रहे हैं एक्सप्रेशन ये इधर आ रहा है, उधर भी जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मास, बट हमने अज्यूम किया ये इधर आ रहा है, वो ऑब्वियसली फिर ऊपर जाना है, ठीक है, क्योंकि मोशन में है तो एक्सप्रेशन होगी, कितनी होगी वो बताना, और टेंशन तो दोनों इससे निकाल सकते हैं। M1 M2 ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एंगल थीटा 1 और ये थीटा 2, टेंशन T, एक्सेलरेशन A, दोनों चाहिए, तो इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। अब तो हमें यही समझ में आ रहा है, वी शुड नो हाउ टू राइट द इक्वेशन, उसमें वैल्यू प्लेस कर देंगे जो भी दे रखे होंगे, एंगल्स दे रखे होंगे, मासेस दे रखे होंगे, वो प्लेस करेंगे तो T और A दोनों निकाल सकते हैं। ये कितना होगा M1 G sin थीटा 1 और ये कितना होगा M2 G sin थीटा 2, राइट। इधर की इक्वेशन क्या होगी M1 G sin theta 1 minus T is equal to M1 G. ठीक है, और उधर T minus G sin theta इक्वल टू आ गया समझ में? परफेक्ट, चलो नोट कर ले। We have a body, we apply force on this string और इसमें होगी टेंशन, तो T किसके इक्वल होगी F इक्वल, ठीक है। और अगर कुछ ऐसा करते we apply force, टेंशन T1 यहाँ T2, ये बॉडी इस पर और ये भी इसी पर फोर्स लगाएगी, तो T2 ऐसे दोनों तरफ लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों तरफ डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं। दोनों का सेम T2 है। हाँ ऑब्वियसली स्ट्रिंग पर फोर्स तो सेम ही लगेगी, एक स्ट्रिंग है आपने पकड़ ली, हमने भी पकड़ लिया, दोनों खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स एक्ट ऑन द स्ट्रिंग वो सेम ही होगी, दोनों का नेट इफेक्ट, ठीक है। अब ये इधर मूव कर रहा है, मास ले लेते हैं M1 M2, T1 और T2 कितना होगा ये बताना है, एक्सेलरेशन कितनी होगी ये बताना है, यानी फाइंड T1 T2 एंड एक्सेलरेशन, ठीक है। सबसे पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज ऑलवेज फोर्स अपॉन मास। ध्यान से सोचो, इधर ध्यान दो, लक्ष्य युवराज, हम इसे खींच रहे हैं, दोनों बॉडीज एक साथ मूव करेंगे तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम, ठीक है। फोर्स कितनी लगी टोटल F और टोटल मास कितना है M1 plus M2, so the acceleration will be F by M1 plus M2, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, राइट। T1 this will always be equal to F, the force that has been applied. इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी, ध्यान रखना, क्वेश्चन में क्या किया, इसको T1 लिख दिया, इस टेंशन को, आपको ध्यान आया सब में ज्यादा T1 तो F के इक्वल होता है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगी वो इस फोर्स के इक्वल, ठीक है। अब आ जाए T2 पर, एनीबॉडी यू कैन गाइड मी, बहुत सिंपल आंसर है, T2 किसके इक्वल होगी F plus T1. ओके, आई गिव वेरी सिंपल आइडिया, इस पर देखो कितनी फोर्स है, कितनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू, जितनी फोर्स इस पर लग रही है उतनी ये इस स्ट्रिंग पर अप्लाई करेंगे, एंड वी विल कॉल इट एज टेंशन, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, T2 कितनी होगी, अच्छा आप इससे कंफ्यूज हो सकते हैं तो हटा देते हैं इसको। अब ध्यान से देखो,
ये बॉडी इस पर कितनी फोर्स लगाएगी, जितना ये स्ट्रिंग इस पर फोर्स लगाएगी, और इस पर कितनी फोर्स एक्ट हो रही है, m/2a। ठीक है, तो वही होगी रिएक्शन फोर्स, तो m/2 राइट। हम सेम केस m1 m2 फोर्स इधर से लगा रहे हैं, सेम बॉडी है, दोनों का मास जितना वहां था उतना यहाँ है। पहले m1 पर फोर्स लगा रहे थे, अब किस पर लगा रहे हैं, m2 पर। तो टेंशन T1 और T2, M1 T1 is एक्सेलरेशन, ठीक है, टोटल फोर्स बाय टोटल मास, T1 is equal T1 is equal to F के पर T2 to M1 M1 आ गया समझ में, ठीक है, ओके, नोट किया जाएगा। T1, T2, T3 एक्सेलरेशन कितनी होगी और ये टेंशन कितनी होगी, तो एक्सेलरेशन इज टोटल फोर्स बाय ठीक है, T1 is equal to F T1 तो F के ऊपर, M2 है T2 इसके ऊपर होगा M2 plus M3A T2 into M2 plus M3A, क्योंकि ये स्ट्रिंग उन दोनों को खींच रही है, समझ गए, समझ गए ना। और एक ही जगह फिर ये लिख देंगे F by M1 plus M2 plus M3, और T3 तो M3A T2 T2 कितना होगा, ये स्ट्रिंग इन दोनों को खींच रही है ना, तो दोनों का मास है, ठीक है। अब T3 M3 है ये स्ट्रिंग सिर्फ इसको खींच रही है, वेरी क्लियर नाउ, ठीक है। हमने पढ़ा बॉडी सरफेस पर प्लेस है एक्सेलरेशन g sin थीटा और नॉर्मल रिएक्शन mg cos theta mg cos, ध्यान में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला जो जो भी फोर्स है उसका नेगेटिव नॉर्मल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला फॉर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ओके, म्यू n या म्यू r एक ही बात है, r नॉर्मल रिएक्शन n भी नॉर्मल रिएक्शन, कहीं n से कहीं r से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं म्यू n लिखा मिलेगा, कहीं म्यू r लिखा मिलेगा, एक ही बात, ठीक है। और r किसके इक्वल होता है, नॉर्मल रिएक्शन। तो ध्यान रखना, if a body is placed on a horizontal surface, तो r equal to mg, और if it is placed on an inclined plane, तो r equal to mg cos theta, यानी यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg के इक्वल होगी, और यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू mg cos थीटा के, ये बात तुम मेरी केयरफुल, ठीक है। फॉर्मूला सेम होगा, F इक्वल टू म्यू r, F इक्वल टू म्यू r, बट r अलग अलग है दोनों में, तो फ्रिक्शन अलग अलग है, नोट कर लो दोनों। पहले ये वाला लिखना, राइट वाला पहले लिखना और लेफ्ट वाला बाद में लिखना। ये एंगल थीटा mg, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, फाइंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नीचे करो जल्दी से, डायग्राम बनाओ, फोर्सेस मार्क करो और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखो, डायरेक्ट लिखना है। फ्रिक्शन भी है, पहले फ्रिक्शन नहीं थी, पहले फ्रिक्शन नहीं थी, अगर फ्रिक्शन ना हो तो g sin थीटा, बट म्यू लिख दिया ना, मतलब इट हैज देयर इज सम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन इज एक्टिव, तो फॉर्मूला क्या होगा ये बताओ। ये एंगल कितना, थीटा, दिस इज mg, दिस इज mg sin थीटा, नॉर्मल रिएक्शन इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किधर एक्ट होगी, इस तरफ इधर, ठीक है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी
along the plane कितनी होगी mg sin theta minus f and this will be equal to ma दोबारा बताएं ना that's the plate body is placed over it नीचे को आ रही है तो एक फोर्स तो ये एक्ट हो रही है और फ्रिक्शन इधर एक्ट हो रही है तो ये ज़्यादा है तो नेट फोर्स कितनी होगी mg sin theta minus f समझ गए ना ये mg sin theta ये है तो दो ही तो फोर्सेज हो गई किस डायरेक्शन प्लेन की डायरेक्शन mg sin theta तो नेट फोर्स कितनी होगी mg sin theta minus f and that's equal to mass into acceleration right mg sin theta minus f को क्या लिख सकते हैं mu r और r किसके इक्वल है mg cos theta वेरी इंपॉर्टेंट नाउ m कॉमन ले लो g भी कॉमन ले लो क्या आ गया sin theta minus cos theta mu cos theta equal to ma तो a will be equal to g sin theta minus mu cos theta mu cos ठीक है नोट करो what minimum force is required what minimum question लिखो what minimum force is required to move a body up a rough inclined plane to move a body up a rough inclined plane rough मतलब फ्रिक्शन कम से कम कितनी फोर्स चाहिए बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए दैट्स द क्वेश्चन फाइंड करो तो एक ही वैल्यू आती है फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg sin से ज़्यादा होनी चाहिए well that's the body this angle with mg ये कंपोनेंट क्या होगा mg sin थीटा और ये फोर्स हम किधर लगाएंगे इधर तो एक्सेलरेशन किधर होगी सॉरी एक्सेलरेशन फ्रिक्शन फ्रिक्शन किधर होगी डाउन बॉडी अगर ऊपर जाएगी तो फ्रिक्शन किधर होगी नीचे की तरफ ठीक है हेलो बॉडी को ऊपर ले जाने के लिए कम से कम कितनी फोर्स चाहिए तो फ्रिक्शन नीचे एक्ट होगी अगर बॉडी ऊपर ले जानी है ठीक तो हमें कम से कम कितनी फोर्स चाहिए एक तो mg sin थीटा के ऊपर और एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वेरी सिंपल बट मूव थोड़ी ना होगा अगर उसके ऊपर होगा दैट्स द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी ठीक है प्लस f क्या होता है म्यू r किसके इक्वल होता है mg cos cos theta. theta so the minimum force required to move the body up the plane mg sin theta plus mu cos theta ठीक है that's all क्या हम लिफ्ट में हैं और लिफ्ट ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है तो हमारे वेट में कुछ चेंज आएगा वेट में कुछ चेंज आएगा कितना इस पर क्वेश्चन होते हैं तो वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट मूव्स अपवर्ड कितनी होगी इंक्रीज होता है mg प्लस plus and weight of a body when it moves down तो कितना होगा m into g minus ध्यान रखना अगर यूनिफॉर्म मोशन है यानी the lift is moving with a constant velocity तो फिर एक्सेलरेशन कितनी होगी जीरो तो फिर वेट किसके इक्वल होगा mg के चेंज तब होगा जब मोशन एक्सेलरेट होगा ठीक है जब मोशन एक्सेलरेट हम आपको एग्जांपल देते हैं लिफ्ट में कभी तो ट्रैवल किया होगा यानी इन लिफ्ट कभी ध्यान दिया जब एकदम चलती है तो कुछ होता है और फिर जब रुकती है तो कुछ होता है जब चल रही होती है तो कुछ नहीं होता है फिर हम लोग देखते रहते हैं फर्स्ट फ्लोर सेकंड थर्ड जहाँ जाना है वहाँ से वेट करें है ना अदरवाइज जब चली और जब रुकी उस समय में कुछ अजीब सा फील होता है जब एक्चुअली शुरू होती है स्टार्ट होती है तो एक्सेलरेट होती है
और जब रुकती है तो डिसेलरेट होती है। जब स्टार्ट हुई एक्सेलरेट हुई हमारा वेट इंक्रीज हो गया, और जब रुकी डिसेलरेट हुई तो हमारा वेट डिक्रीज हो गया। तो हमें वो फील होता है ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल ओनली। बीच में इट्स मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, और क्योंकि बीच में वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन कितनी है 0, तो हमारा वेट नॉर्मल रहता है, इसलिए हमें ज़्यादा कुछ फील नहीं होता है। कोलंबस में अगर बैठे हो आप, वो झूला जो होता है, तो उसमें कभी नोटिस किया हो ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। जब नीचे आता है तो कुछ होता है, देयर इज अ सडन डिक्रीज इन वेट, देयर इज सडन डिक्रीज इन वेट, क्योंकि नीचे को आ रहा है। और जब वेट डिक्रीज होता है तो हमारी बॉडी इट फाइंड इट स्लाइटली डिफिकल्ट टू एडजस्ट। थोड़ा इंक्रीज होता है तो एडजस्ट कर लेती है, बट डिक्रीज होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। तो कभी टिकल होती है, कभी अजीब सा फील होता है, वो फीलिंग आती है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अपवर्ड मोशन में वेट इंक्रीज होगा, डाउनवर्ड में डिक्रीज होगा। या कह लो एक्सेलरेशन होगी तो इंक्रीज होगा, डिसेलरेशन होगी तो डिक्रीज होगा। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेट विल रिमेन सेम इक्वल टू mg। और जब फ्री फॉल होगा तो क्या होगा? फ्री फॉल तो एक्सेलरेट हो रहे हैं तो वेट तो वेट विल बी इक्वल टू m m into एक्सेलरेशन g के इक्वल होगा, हाँ, zero। तो वेट 0 हो गया। तो वेट क्या हो जाएगा? 0। वी कॉल दैट एज वेटलेसनेस। उसी को क्या कहेंगे? वेटलेसनेस।